جناب، تو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہماری ریلیجیس اسکالر سید عسکری صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری ساتھیہ امام، اور ساتھ میں ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان فائزہ کامران موجود ہیں۔ آپ چاروں خواتین کو، اپنے معزز گیسٹ کو میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور یہ دن آپ کو یہ ایام بہت مبارک۔ بالکل بالکل، یہ تو پورا ہفتہ ہی ہم جشن عید میلاد النبی عید زہرا، عید شجاع، آپ کو یہ ماہ جو ربیع اول آتا ہے نا، اس میں میرا خیال ہے کہ جس طرح ہمارے آل رسول خدا کی آل مسکراتی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح کے ایام ہمیں بہت ہی کم یا شعبان میں مل پاتے ہیں، یا پھر ہم رجب میں مل پاتے ہیں، یا پھر ہم ربیع اول میں مسکرا پاتے ہیں۔ اور ربیع الاول کا تو مہینہ ایسا افضل مہینہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس مہینے کو منتخب کیا کہ اللہ پاک نے کب، مطلب یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے محبوب کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا، تو اللہ پاک نے اس مہینے کا انتخاب کیا کہ کب میرا محبوب اس دنیا میں جلوہ افروز ہوگا، تو یہ وہ مہینہ تھا۔ میں نے ظاہری سیلیبریشنز کے والے سے بات تو کی، لوگوں کے گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، اور اس وقت آپ نکلے یقین مانے دل میں خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں تو لوگ اپنی جھوپڑیوں کو بھی چراغاں جیسے کر رہے ہیں، سجاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز کو جب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جس طریقے سے سجاتے ہیں تو ایسا دل کو مطلب سکون بھی ملتا ہے، اور ساتھ میں خوشی سے رونا بھی آتا ہے کہ کیا میرے حبیب کہ اگر اس دنیا میں ہم خاکی لوگ اگر یہ کر رہے ہیں تو عرش پہ کیا سیلیبریشن ہوتی ہوگی۔ تو مجھے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو بتائیں اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا چاہیے، ہماری تیاریاں کیا ہونی چاہیے سر بتا پاس دن کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عشق دم جبریل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، یقیناً یہ پوری کی پوری کائنات عشق کی ہی کار فرمائی کے تحت ہے۔ اور جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی اگر یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا۔ تو یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکامات لے کر آئے وہ احکامات نہ ہوتے، اور عید الفطر نہ ہوتی، عید الاضحیٰ نہ ہوتی۔ تو یقیناً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے میں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جایا کرتی ہے، اس لیے کہ فرش پر بھی خوشیاں ہیں اور عرش پر بھی خوشیاں ہیں، اور جب فرش اور عرش کی بات ہوا کرتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت میں سب سے پہلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کے حالات پر ضرور گفتگو کرنا چاہوں گی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت آمنہ بنت وہب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی تھی، تو وہ حضرت آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں کہ میں جس طرف سے جایا کرتی تھی تو درخت اس مقام پر جھک جایا کرتے تھے اور مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور آمنہ بنت وہب کہا کرتی تھی کہ یعنی مجھے معلوم تھا کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ پروردگار عالم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد باسعادت ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی نہر خشک ہو گئی اور قیصر و کسریٰ کے کنگورے لرز گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت سے وہ اس جس حجرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور ساطع ہوا کہ جس سے شام کے محلات تک صاف نظر آنے لگے، اور صرف وہ حجرہ نہیں روشن ہوا بلکہ پورا گھر روشن ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بہت بڑے عظیم واقعات ہیں۔ بالکل، جو میں چاہوں گی کہ ہم سب دیکھیں نا، اللہ پاک نے کائنات کو یقیناً ریڈی کرنا شروع کیا ہوگا، بالکل لوگوں کو بھی ریڈی کرنا شروع کیا، تو اس میں اور کیا کچھ نشانیاں جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ جہاں سے گزرتی تھیں تو وہاں درخت بھی جھک جایا کرتے تھے تعظیم میں۔ جی دیکھیے، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ عرب کی تاریکیوں کا اس وقت مقدر بدل گیا جب آفتاب رسالت نمودار ہوئے، ظلمت کدے عبادت گاہوں میں تبدیل ہو گئے، تیرگی کا خاتمہ ہوا، روشنیوں کے دور کا آغاز ہوا،
कि खुदा के नूर का परतो वतन आमना से दुआए खलील बनकर पैदा हुआ। देखिए हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने घर में चिराग रोशन नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर इतना पुरनूर था कि हर वक्त उसकी रोशनी घर में फैली रहती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बीबी आमना के कानों में मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। बीबी आमना के कानों में आवाज़ आई, आमना मैं हूँ दुनिया की पहली औरत हव्वा, तुम्हें फ़क्र इंसानियत की माँ बनने पर मुबारकबाद देती हूँ। दूसरी आवाज़ आई, आमना मैं हूँ सारा इसहाक की माँ, तुम्हें नवीद मसीहा मुबारक हो। तीसरी आवाज़ आई, आमना मैं हूँ हाजिरा इस्माइल की माँ, तुम्हें दुआए खलील मुबारक हो। देखिए आप ये देखिए कि जो यतीमों पर रहम करने वाला है, जो गरीबों की दिलजोई करने वाला है, वो जिसने जहालत के अंधेरों को दूर किया, इल्म की रोशनी फैलाई, वो जिसने भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, वो जिसने लोगों को दुनिया में तशरीफ़ लाकर ये तालीम दी कि लोगों उन बुतों की परस्ती छोड़ो जो तुमने खुद तराशे हैं, उस अल्लाह को सजदा करो जो वाहिदुल ला शरीक है। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और अपने नूर से सारे कायनात को रोशन और मुनव्वर कर दिया। तो हमारा ये भी फ़र्ज़ है। देखिए मदीहा साहिबा तजदीद अहद का दिन है कि आज हम जश्न मना रहे हैं, आज हम घरों को सजा रहे हैं, आज हम चरागा कर रहे हैं। हुजूर से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि हम उनसे मोहब्बत करें और सुन्नत नबवी की इत्तिबा करें। अच्छा, साथ में जहाँ आपने कहा ना कि ये जो हम घरों को चरागा कर रहे हैं, और ये इसमें मुझे लगता है हमारी, और जो मोहब्बत के इजहार में हमारी आंखें नम हो जाती हैं, इसमें हमारी माओं को बहुत क्रेडिट जाता है कि हमारी माओं ने सीना बसीना वो मोहब्बत, वो इश्क, वो मवद्दत जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बच्चों में मुंतकिल की। तो ये भी बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि अगर हम आज के दिन इतने खुश हो रहे हैं तो आज के ज़माने में इतनी मोहब्बत से उनका जिक्र करना यकीनन अल्लाह पाक की हम पे ख़ास करम है। जैसा भी इन्होंने कहा कि ये तशदीद अहद वफ़ा का दिन है, तो मेरे करीम मौला ने क्या मांगा था हमसे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ही चीज़ें छोड़ी, इतरत, मवद्दत। उन्होंने कहा मैं अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ और एक किताब छोड़ के जा रहा हूँ। तो हमने किताब के साथ, अहले बैत के साथ जुड़ के रहना है। उस मोहब्बत को देखिए कैसे हो सकता है कि मदीहा मैं आपसे प्यार करूं और आपके औलाद से प्यार ना करूं। बिल्कुल सही। ये मुमकिन नहीं है कि मैं इनकी इज्जत करूं, इनकी औलाद की इज्जत ना करूं। मैं इनसे बहुत खुलूस से पेश आऊं लेकिन मैं इनके ख़ानदान वालों से खुलूस से तो मुझे ऐसे लगता है ये जो तजदीद वफ़ा है ना, ये वंस अगेन जो हमारी न्यू जनरेशन है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप यकीन जानिए कि जहाँ वो कह रहे हैं कि ये अहले बैत मुझसे है और मैं इससे हूँ, लहमा लहमी दहमा दहमी, तो ये जो एक जुमला है इसको यकीनन ये हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन इसको हमें बड़ा ज़रूरी है खोलना इस जुमले को कि सिर्फ रसूल खुदा को थाम के हम दुनिया को, बेशक वो है, लेकिन अहले बैत जब उन्होंने हमें दे दी उसको हमें थामना उतना ही जरूरी है। जैसे आम आदमी से मोहब्बत अगर करें ना तो उसके तकाजे और होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब उस नूरी हस्ती से मोहब्बत करते तो उससे मोहब्बत के तकाजे और क्योंकि आप उसकी, क्योंकि फिर आप तो कहते हैं कि आप हमें गुलामी में ले रहे हैं, हम यही जो चले जाते हैं, हम यही कहते हैं रसूल पाक अगर कोई किसी के घर में भाई चले जाए, कोई मर जाए तो कहते हैं अल्लाह मियां रसूल पाक उसको अपनी गुलामी में ले। मेरी जैसे वालिदा की डेथ होगी वे, तो मैं जब दुआ करती हूँ तो मैं कहती हूँ बीबी ज़ारा पाक अब कनीज़ी में रखिएगा, तो हम तो ये स्पेशली दुआ करते हैं। अच्छा, अगर मैं बचपन की बात करूँ तो आप बचपन में कैसे सेलिब्रेट करती थी? हमारे बचपन में आज भी, बचपन क्या आज भी हमारे यहाँ, मुझे क्योंकि हम पंजाब में रहे तो आपको पता है पंजाब का एक खासा होता है कि वहाँ तो बाकायदा कंपटीशन होता था, बनाई जाती थी, बाकायदा कंपटीशन होता था, बिल्डिंग्स पे भी लाइटिंग हो रही है और मोहल्लों में भी कंपटीशन होता था किसने ज्यादा खूबसूरत तरीके से। हमें याद है अम्मी ने हमें ना कागज से ताजिए बनाने सिखाए थे, हम ताजिए बनाते थे, इतनी खूबसूरत मेहराब बनाते थे, फिर उनमें हमें लाइटिंग करना,
کلرز بھرنا، تو یہ ساری چیزیں بچپن سے اب تک ہے. اور آج میری بیٹی کے اندر ہے کہ وہ ڈرائنگ کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں ڈرائنگ؟ کہہ رہی مما یہ میں نا یہ لگاؤں گی اپنی اسکرین کے اوپر کیونکہ یہ میں نے خود بنایا ہے. تو وہ مسجد نبوی کو انہوں نے وہ کیا. تو ڈرائنگ یہ چیزیں کیا ہے، یہ ہم نے کی ہے تو بچے دیکھ رہے ہیں. بالکل. اب اگر آج کے دور میں ہم یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے، چلو لیٹس گو فار دا ڈنر، تو ڈنر تو ہم روز کر رہے ہیں. اس کے لیے اسپیشل کیا ہے؟ کیا آج ضروری نہیں کہ ہم بہترین دسترخوان بچھا کے اپنے کچھ احباب کو بلائیں؟ ضروری نہیں آپ 100 لوگوں کو بلائیں. مجھے ایسا لگتا ہے جو خلیل اللہ تھے رسول میرے رب کے، حضرت ابراہیم، وہ ان کا دسترخوان کبھی کسی وقت خالی نہیں رہا. وہ کبھی اپنا کھانا اکیلے نہیں کھائے. تو ہم ان کی ہی بات کو اگر لے کے چلے کہ اگر آج کے دن ہم دسترخوان بچھائیں ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اور ہمارے گھر مہمان آئے. باقی سوچو کہ کتنا، اگر ہم عام شخص کی بات کریں، سروت آپ کو کوئی، آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کے بچے سے اتنا محبت کرتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کرے، تو یہ تو پھر رسول پاک ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں. وہ دیکھیں کہ اچھا میری خوشی میں یہ میرے لوگوں کو کھانا اتنا کھلائے. تو آج کے دن میں سے کرنا کیا کیا چاہیے؟ آج کے دن کی تیاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیا کیا تیاری میں چیزیں ہونی چاہیے؟ آج کے دن کی تیاری کے حوالے سے جب بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم کو اپنی واجبات کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور گھر کو سجانا چاہیے اور دسترخوان بچھانا چاہیے اور عمدہ اور نئے لباس پہننا چاہیے. یقیناً یہ سب. اور ویسے بتائیں، یہ میری امی کہتی تھی جو خاص اچھے دن ہوتے ہیں نا، مبارک دن، تو کہتے ہیں وہ جو نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا. تو آپ لوگ سے جس کال میں موجود ہیں مجھے بتائیں کہ واقعی اگر کوئی آج اچھے کپڑے پہنے یا نئے کپڑے پہنے تو ان کا حساب نہیں ہوگا؟ یہ اللہ میں معاف تو کر دیں گے. میں کہتی ہوں ان کی نسبت سے کچھ بھی پہن لے تو اس کا حساب ثواب ہی ہوگا. مجھے لگتا ہے صحیح بات ہے، ثواب ہوگا. اور یقیناً جب ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو استعمال کرتے ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم نیا لباس پہنیں گے تو پروردگار عالم کیسے اس کا حساب لے گا. رب العالمین ہم سب کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے اور تمام امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جشن یقیناً ہم سب کو بہت اچھی طرح منانا چاہیے اور اس طرح سے منانا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت کا اظہار ہونا چاہیے. بالکل بالکل صحیح بات. اچھا میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ بریک پر جانا تو بریک سے پہلے نعت کا نذرانہ ضرور ہو جائے. صبح کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر و مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفقیرین
ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। इंतज़ाम हो सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को सब्ज़ गुंबद को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। बला से और तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कभी जो की गली में क़याम हो जाए। और ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर
कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको एक बार फिर से हम अपने इस खूबसूरत सी महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। सलमान आलम हमारे बहुत ही प्यारे नात ख़्वान भाई, उन्होंने भी ज्वाइन किया, साथ में हमारी बहुत ही प्यारी नात ख़्वान बहन मरियम बख्तावर, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। आपको भी हम शो में खुश आमदीद भी कहते हैं। ईद मिलादुल नबी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन यकीनन वो नाम लिखते हैं तो हम इस महफिल में बैठे हैं, वरना ये मोहब्बत, ये मवद्दत, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि हमारे दिलों में मौजूद है। इसमें हमारी माओं को बहुत क्रेडिट जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ। और वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर ये हुब्बे रसूल डाली है, दो अल्लाह की सुन्नत अदा करते हुए रसूल खुदा की मोहब्बत जो डाली है, चाहे वो इस दुनिया में हो या दुनिया से चली गई हो, तो अल्लाह पाक जो जहाँ है उनकी वहाँ पे जो मुश्किलात उनको आसान ज़रूर कर दे। मैं हम जी अभी सलमान साहब ने इतनी खूबसूरत कलाम पढ़ा। सादे साहब आपकी नज़र हुजूर की शान में एक शेर कह रही हूँ कि सुकून दिल का ख़जाना वहाँ से मिलता है, चलो मदीने के सब कुछ वहाँ से मिलता है, दिलों की दर्द का जिक्र रसूल है दरमा, हयात रूह का सामा वहाँ से मिलता है, जो मांगना है उसी दर से मांगना मुस्लिम, खुदा के बाद उसी आस्था से मिलता है। यकीनन यकीनन। और यही है, और मतलब ये तो वसीला निजात है, यही तो हमारे वसीले हैं कि जिनसे हम अल्लाह पाक से जो चाहे मांग सकते हैं। कि हमें पता है कि इस वसीले से दुआ जाएगी तो रद्द तो कभी भी नहीं जाएगी। तभी कहते हैं दुआ करो तो अव्वल आखिर दरूद जरूर पढ़ो, क्योंकि दरूद जो है ना, ये ऊपर जो है, ये जब ऊपर आपकी दुआ कबूल कराते थी। मुझे बताया, मैं तो वैसे सीरत पे बात करना चाह रही थी अभी, लेकिन आपने बात की, इतनी प्यारे हमने कलाम पढ़ा। मैं आप सब लोगों से आपका एक्सपीरियंस वैसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप लोग जब पहली बार जब आप मदीने गए और आपने सब्ज़ गुंबद को देखा, तो सबसे जानना चाहूँगी कि क्या फीलिंग्स थी। आपसे शुरू करूँगी। देखिए, आज हम हुजूर की विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं। रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना हम पर साए फिगन है। और देखिए कि अल्लाह ताला का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वो नेमत उज़्मा अता की जिसके सदक़े में हमें कुरान मिला, ईमान मिला, रहमान मिला, ईकान मिला। हम उस राह पर चले जो मार्फत इलाही की तरफ ले जाती है। मदिया साहिबा, मेरा नाम उन खुशनसीबों में होता है कि मैं 24 साल से हर साल उम्रा करने जा रही हूँ। 2024 में मैंने हज किया। क्या दिल की कैफियत है, जिनके सबसे पहले तो जाकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि परवरदिगार आलम, तूने हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। और देखिए, दुनिया कायनात में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश के लिए रोए। तो कितना एहसान है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई। और अभी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने के ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं सारी दुनिया के दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, रेत के जर्रे गिन सकता हूँ, तारे सारे गिन सकता हूँ, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, उस शख्स पर अल्लाह की रहमत की तादाद नहीं गिन सकता जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से हासिल होती है। मैं आपके मुख्तसर तो मैं सबके एक्सपीरियंसेस जानना चाह रही हूँ। तो मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें हर साल वहाँ बार बार ले जाए और हाज़िरी नसीब फरमाए। आपके दिल में क्या बात है जब आप पहुँचे? तो मुझे पता है, पहले यकीन भी आया कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ।
अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये अल्लाह ताला की मसलिहत, इसे कहेंगे कि मैं अभी तक नहीं जा इंशाल्लाह सकी। इसी साल आप जाएंगी। सब मेरे हक में दुआ करें, और जो हाजरीन और नाज़रीन भी मुझे देख रहे हैं वो सब मेरे हक में दुआ ये करें। साल खत्म भी नहीं होगा, आप जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा रसूल जो है वो ज़रूर जो है, और स्पेशली बीबी पाक आपका नाम उन ज़बारों में लिख दे के जो इंशाल्लाह इसी साल कभी ज़रूर कभी जाएंगी। ऐसा होता है कि हम इरादा करते हैं, लेकिन और जिम्मेदारियां आपके ऊपर ऐसी होती हैं कि वो भी ज़रूरी हैं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, उनको पूरा करते करते इंशाल्लाह 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 वही बुलाएंगे और असबाब भी वही आपको मुहैया करेंगे। सलमान, आप बताओ। आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करूँगा कि इंसान पहले तो ये महसूस करता है कि मैं वो वाकई वो खुशनसीब इंसान हूँ जो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं उस आका और मौला के दर पे पहुँच गया हूँ जिनकी हम बातें सुना करते थे। ओए होए, मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते थे। और फिर हुजूर का शफकत, दस्ते शफकत ये था कि मैं एक हमेशा ये वाक़या बताता हूँ कि मैं जब हाज़िरी के लिए पेश हो रहा था तो लाइन बहुत तेज़ तेज़ चलने लग गई थी। शुरते ना तेज़ तेज़ कर दिया उसको। तो वो एक, मैं जब जैसे ही पहुंचा ना तो वो एक बच्चा नहीं बोलता हुजूर मैंने नहीं जाना। तो इतनी देर में बस ये बोलने की देर थी कि विद इन सेकंड शुरते ने मेरे ना कंधे पे हाथ रखा। मैंने उसको यूं देखा, कह रहा है स्टे हियर सला टाइम, कि भाई नमाज का टाइम हो गया तो यहीं रुक जा। और मेरे बिल्कुल पीछे, मेरे पास आज भी वो तस्वीर मेरे पास है, उसके पीछे लिखा था मा काना मुहम्मद नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मैंने वहाँ पे नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर को ना सुनाई वहाँ पे। इससे बड़ी सादत और क्या होगी मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल साथी, जब आप पहली बार मैं उन बदनसीबों में से हूँ और कि मैं अभी तक नहीं जा सकी, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगी। उनके नवासों की इतनी दफ़ा ज़ाहिर बन चुकी हूँ तो मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मुझे बुलाएंगे और वहाँ भी मैं ज़रूर हाज़िरी दूंगी। तो यही कैफियत होगी। कहते हैं कि जब आपकी नज़र पड़ती है तो आप वो भूल जाते हैं जो आप कहना चाहते हैं, आप ढूंढते हैं। और मैं भी ये सोचती हूँ कि लोग वहाँ जाके दुआ क्यों मांगते हैं। मैं जब आप वहाँ पहुँच चुके तो उसके बाद क्या दुआ रह जाती है। तो यकीनन वो देख लेना, उन गलियों में फिरना कि जिन गलियों में नवासे रसूल को लेके मेरे रसूल खुदा फिरे होंगे, मैं तो उन गलियों में घूमना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएगी, आपके एक्सपीरियंस के हवाले से बात भी करेंगी। मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात भी करूंगी। मैं 3 साल की थी जब मेरी अम्मी ने, मतलब अम्मी को देखती थी तो मैं 3 साल से नाते पढ़ती आ रही। ये मेरी माँ को क्रेडिट जाता है। तो अल्लाह, इस वक्त मेरी अम्मी जहाँ पे भी आसमानों में, वो भी इस वक्त मिलाद ही पढ़ी होंगी क्योंकि मेरी अम्मी ने जिंदगी भर यही किया है। छोटी सी ब्रेक के बाद मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया।
माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहें ऐसी आवाज़ें सलामत रहें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत को बयान करते हैं। आप तमाम तर लोगों को मैं इस प्यारी सी महफिल में, इस ईद मिलादुल नबी की महफिल में खुश आमदीद कहती हूँ। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि देखें हम तो यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ अपने प्यारे का दीदार जो है वो दुनिया से जाते हुए भी करा देना, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा नाम उन लोगों में लिखा हुआ है कि जो कि डायरेक्ट जन्नत में जाएंगी और उनका और कहीं ठिकाना ही नहीं होगा, वो जन्नत ही उनके लिए है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि जब पहली दफ़ा आप जब कहीं सरकार के, हाँ, और आपने गुम्बद देखा तो क्या, पहले बताइए जाना कैसे हुआ, असबाब कैसे बने, ये भी बताइएगा आप। अच्छा, मैं क्योंकि हर दफ़ा वो जो एक डॉक्यूमेंट्री आती थी पीटीवी पर जो कि मदीना मुनव्वरा की तामीर और तोसी के हवाले से हुआ करती थी, तो मैं एक दफ़ा ना वो वाली डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, तो मैं घर में वो टीवी चल रहा था तो मैं उसके सामने बैठ के रोने लगी। मैंने कहा कि अच्छा, बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, तो मैंने कहा कि मैं तो कैसे जा सकती हूँ, मगर मैंने कहा या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो आपकी ज़ियारत का शौक़ है। और उसी दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चली जाओ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह चली गई। अच्छा, मैं अब तक 3 हज कर चुकी हूँ, उम्र तो पता नहीं न जाने कितने ही कर चुकी हूँ। तो एक मर्तबा की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली दफ़ा की बात होती है ना अल्लाह के घर देखने की, और वो बात बिल्कुल और होती है। खाने काबा का तो जो जलाल और जमाल है उसको तो अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। तो रियाजुल जन्ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र और जन्नत के मिंबर के दरमियान का जो इलाका है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो मैं रियाजुल जन्ना में बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि किस तरीके के हालात हुआ करते हैं, और मैं एक सतून के पीछे खड़ी हो गई और वहाँ पर यकीन करें मैंने पूरी मजलिस पढ़ ली कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा और आपको इमाम हसन का पुरसा, और मैं आंखों से रोए जा रही हूँ, आंसुओं की लड़ी बाकायदा, और मुझे जैसा लग रहा है हाँ, किसी ने देखा ही नहीं, और मैंने पूरे मसाइब पढ़े, और मैं आज तक हैरान हो गई, मुझे आखिर वो किसी ने क्यों नहीं देखा था। वो चाह रहे थे, ये चाह रहे थे ना। तो ये आपकी बेबी की क्या बात है। देखिए ये उनके मौजूद, क्योंकि वो चाहते थे आप रुके, जैसे उन्होंने बात की, वो चाहते थे कि मैंने नहीं जाना, हाँ, तो रोक लिया गया कि अब यहाँ नमाज का टाइम होगा, तो आपकी बात को रोको। बिल्कुल ऐसे ही हमें अम्मी और पापा ने, हमने प्लान किया 2010 में हज पे जाने का। पापा अम्मी ने कहा कि चलते हैं, तो हम गए, हमने जाके अपने वीज़े और के, उस वक्त उन्होंने कहा 2 लोग जा सकते, जितनी अमाउंट है उसमें 3 नहीं जा सकते। तो अम्मी पापा गए, और बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि ये टीवी देख रही थी, मेरी अम्मा पहली दफ़ा जब उम्र पे गई तो वो टीवी देख रही थी और कहती पता नहीं हम कभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं हम कभी जाए, और रोए जा रही, अल्लाहुम्मा लब्बैक कहती हुई और रोए जा रही। मैं कहा अम्मी क्या हुआ, कि आप यकीन, उनमें नई उन दिनों में इंडस्ट्री में आई थी, आप यकीन जाने नेक्स्ट डे मेरे साथ, मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ में 4 साल 5 साल उनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर रही। मैंने नेक्स्ट डे जाके वो साइन किया। अम्मी 10 दिन बाद उम्रे पे वहाँ मौजूद थी। तो मौला, मेरा ख्याल है कि आपकी हमारे उनको देने में कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है। हम अपने आप को देख के मांगते हैं, उनकी शान और शौकत को देख के नहीं मांगते। उस अकीदत से, उस शिद्दत से मांगे जिस तरह बच्चा, वो कहते हैं ना गिड़गिड़ा के, उस बच्चे की तरह मांगो जैसे इन्होंने मांगा, बच्चा बन के। तो उस दर पे तो ये जो जमा कर जाना होता है ना, वो पैसों से जाना नहीं होता, नियत से जाना होता है, नियत से जाना। कभी कभी तो मैं तो कहती हूँ कि कभी कभी आप तखयलात में भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये आप फिजिकली वहाँ पे हो ना हो, लेकिन तखयलात में भी जाना भी बड़े इम्पोर्टेंट। मदिया, मुझे जैसे लगता है कि अब कितनी महंगाई हो गई है, डॉलर कितना महंगा हो गया है, तो यकीनन वहाँ जाने वालों में कमी हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कोई रश की कमी नहीं होती है। मैंने जब पहली मरतबा हज किया था तो वो 1 लाख में हज किया था, और अब अभी मैंने 2024 में हज किया है तो वो 15 लाख तकरीबन पूरे पड़े थे। तो मगर वो इंतज़ाम उस तरफ से हुआ करता है। ये कितनी आपने प्यारी बात की, इंतजाम वहीं से होता है। आपका इंतजाम कैसे हुआ था जब आप गई थी, तो आपकी क्या फीलिंग थी ये बताएं, और मतलब कैसे असबाब कैसे एकदम से हुए, मुहैया हुए? रमज़ान की ट्रांसमिशन से जा रही थी तो कलाम लगा हुआ था ट्रांसपोर्ट पे, तो वहाँ पर जब कलाम आ रहा था ना, मेरे आंसू यूँ हो रहे थे जैसे सलमान भाई ने हुजूर ऐसा कोई, तो मैं लगा या रसूल अल्लाह
कभी तो हाजिरी का शर्फ बख्शते हैं, वो एक होता है ना। अभी सलमान भाई ने कहा ना वहाँ पर जाना बड़ा कमाल है, बोलते ना उथे जाना खेड मुकद्दरा दी, कोई तंद दौलत दी खेड नहीं, कई दौलत वाले रें जाते मिस्कीन नज़ारे लेंदे ने। आप यकीन माने वो दिन था, दुआ कबूलियत की थी, रोज़े की हालत में थी, फ़ौरन ईद के बाद अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मदीने में जाने का ये था कि 15 दिन मेरा मदीने में था, 13 दिन मैं नहीं जा पाई थी रियाजुल जन्ना में, रोती थी सरकार के रोज़े के बिल्कुल हरम शरीफ में बैठ के, या रसूल अल्लाह मुझे आना है, मैं नहीं आ पाती, रश इतना होता है। उस दौरान तो ये बायोमेट्रिक वाला कोई सीन नहीं था। बहुत सारी दुआओं के बाद एक ये हुआ कि एक आंटी अपनी व्हील चेयर पर जा रही हैं, मैंने आंटी कहाँ जाना है, मैं ले जाती हूँ आपको, बोली आगे जाना है। उनसे बात करते करते मुझे नहीं पता कि मैं रियाजुल जन्ना में खड़ी हूँ। अल्लाह अकबर। ये बाकायदा वो आंटी से अभी तक मैं राब्ते में हूँ, मुझे नहीं पता मैं रियाजुल जन्ना में खड़ी हूँ और मेरे आंसू यूँ गिर रहे हैं। वाकई सरकार ऐसे बुलाते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको बताऊँ, मैं जब गई, हम बहुत मुख्तसर सा हमारे पास वक्त था, मैं अपना बच्चा छोड़ के गई हुई थी पीछे, और हमारे पास 4 दिन थे, 4 साढ़े 4 दिन थे, जिसमें मुझे 2 उम्रे करने थे। मेरा था कि मैं 2 उम्रे करूँगी। अच्छा, 2 उम्रे किए मैंने, और उसके बाद फिर हम मदीने चले गए। अब एक ऐप नुस्ख आ गई हुई, तो नुस्ख में ना अपॉइंटमेंट ना मिले। अब मैं जब से पहुँची थी तो मैं सरजमीन जैसे सऊदी वहाँ पे पहुँची, वहीं से मैं नुस्ख में लगी हुई थी कि मेरी रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट किसी तरीके से हो जाए, क्योंकि सबने कहा था बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐप आ गई है और आप QR कोड मिलता है, वो QR कोड दिखाते तब वो आपको एंट्री देते हैं। मर्द बड़े इस हवाले से मैं कहती हूँ लकी हैं भाई कि आप वो पर्टिकुलर गेट से, आप गेट 31 गेट 30 से आप बिल्कुल सीधा चले जाएं तो मर्द तो आराम से रियाजुल जन्ना से होते हुए आराम से। हम मदीने गए हैं तो फैसल मुझे कहते हैं कि मैं तो बड़े आराम से रियाजुल जन्ना पे ज़ियारत, मैंने आराम से दिल सुकून की मैंने ज़ियारत की है, मैंने बातें की। अब मुझे हो बहुत, मैंने कहा कि पता नहीं, क्योंकि मैं जब पहुंची थी ना तो मैंने कहा मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देता हूँ। मैंने कहा क्या? हम जिस होटल के दूसरे दरवाज़ा, उसने कहा तुम, मैं दरवाज़ा खुलेगा तो तुम देखना। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मस्जिद नबी। मेरा खुशी का आलम था, मेरे जूते फेंके। अच्छा, अब गेट इतना फासला था कि जैसे ही होटल का दरवाज़ा था और ये मस्जिद का गेट था, तो मैं खुशी में जूते डाल के भागी। खैर ज़मीन उस वक्त वो जल रही थी, लेकिन मैं गई तो मेरी मम्मी कहती तुमने जूती नहीं पहनी। मैंने कहा मुझे खुशी से समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या ना, कि मैंने कहा मैंने ये देख रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। खैर उसके बाद लेकिन जब मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी मैंने कहा मैं आई हूँ और मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। हम खाने पे कहीं भी जाते, कोई हमें मिलता तो मैं उनसे पूछती आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, आपको मिल गई? लोग कहते हैं मिल गई है लगन। तो मैंने ये बात है जुमे का दिन होगा और हमने जुमेरात की बात है, और जुमे को हमने दोपहर में चले जाना था। तो मैं सारी जुमेरात को भी लगी रही, हर वक्त चेक करती अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो मैंने एकदम से जनरल बकी की तरफ मुड़ के देखा और मैं रोई, और मैंने कहा बीबी मैं यहाँ पर आई हूँ और मेरा नाम नहीं है इधर कि मैं जा सकूँ, क्या आपने अपने लिस्ट में अपने बाबा के ज़ायरों में मेरा नाम नहीं लिखा कि मैं जाऊँ? और बस पता नहीं क्या हुआ। खैर मैं सोई हूँ, सुबह 4 बजे ना मैं एक रोबोट की तरह उठी, जैसे किसी ने मुझे उठाया है। मैं उठी हूँ, मतलब नमाज के लिए तो उठना था, तो मैं उठी हूँ और उठ के जैसे ना मैंने सबसे पहले एक कंप्यूटर सा उठा और मैंने वो नुस्ख की ऐप खोली और उसमें मुझे अपॉइंटमेंट मिली। वो अपॉइंटमेंट थी बिल्कुल फजर के बाद की, और वो भी जुम्मे की। मुझे तो ये अच्छा मैंने उस वक्त कर ली, जब मैंने सारा यूँ कर लिया बिल्कुल रोबोट की तरह, तो एकदम से जैसे मुझे होश आया तो मैंने कहा ये क्या हुआ है? अभी किया है मतलब अभी फजर पढ़ ली मैंने कहा ये क्या हुआ है? अच्छा वो तो मैंने उसके बाद मैंने कहा मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। तो वो कहते तुम कब की? मैंने कहा जुम्मे की मुझे उसकी मिली है। और इतनी मैं खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो लगा मतलब लोग क्या जन्नत की ख्वाहिश करेंगे, मुझे तो लगा जो मांगना तो यही मिल गया, इसी की तो ख्वाहिश थी। फिर गए और उसके बाद वहाँ पे आपको एक और मजे की बात बताऊँ, वहाँ पे बहुत मुख्तसर वक्त मिलता है नमाज पढ़ने का। तो जब मैं गई हूँ, अच्छा क्योंकि मैं काफ़ी देर से इतनी एक्साइटेड थी कि वो काफ़ी देर से मैं खड़ी हुई, पहले मैं अकेली खड़ी थी, मैंने ऐसे देखा लोग आना शुरू हुए हैं, मैंने कहा मेरी हो सकता है चलो मुझे ज़रा टाइम मिल जाएगा। फिर पता चला लोग आराम से आ रहे हैं, वो टाइम से मैं आधा पौना घंटा पहले पहुँच गई थी। खैर वहाँ गए, नमाज़ पढ़िए, तो उसके बाद फिर मैंने फ़ौरन 2 रकात और की नियत मान ली, फिर मैंने शुक्राने की नियत भी मान ली। तो अब वो मुझे बंदी कहे कि तुमने इशा की भी पढ़नी है, वो अपनी अरबी में लगी हुई, मैं अपनी उर्दू में लगी हुई कि कोई बात नहीं खानो वेट का। तो वो अपनी वो अरबी मेरी उर्दू में एक चीज़ चल रही। अच्छा उसके बाद जब उसने कहा चलो बस चलो यहाँ से, बहुत कम टाइम लिखा होता है कि आधा घंटा मिलेगा, लेकिन वो 15 मिनट से भी कम का टाइम, 15 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा बता रही हूँ। खैर जब मैं निकलने लगी तो मुझे ऐसा, मैंने कहा इतनी बीबी
आपने अपने वालिद की ज़ियारत मुझे इतने कम टाइम के लिए दी थी। खैर कहते कहते मैं एकदम से रोने लग गई। मैंने कहा पता नहीं मैं दोबारा ज़िंदगी मिले ना मुझे, आपको क्या पता आप कि आज हैं कल नहीं। तो मैं रोने लग गई। मैंने कहा अगर मेरा आखिरी दिन है तो आपको सलाम। वो मैं कहते कहते ना मैं रोई जाऊँ काफ़ी देर में खड़ी रोई जाऊँ। चल मेरे सामने से लोग गुजर रहे हैं रोई जाए। तो एकदम से मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा इनको ये सब लोग गुजर रहे हैं, इनको मैं नजर नहीं आ रही, ये मुझे निकाल क्यों नहीं रहे। जब तक मैंने खुद नहीं देखा ना, क्योंकि वहां पे एक बंदा एक खातून खड़ी हुई थी जो जिसने वर्दी पहनी हुई थी, जब तक मैंने उसको खुद मुड़ के नहीं देखा ना उसको मैं नजर नहीं आई। बल्कि मेरा कद लंबा है, मुझसे आगे लोग जो मुझसे आगे लोग भी नजर है तो गुजर रहे हैं, उनके पीछे मैं नजर आ रही हूँ। तो तब उसने कहा कि ये, फिर पीछे से एक बंदा आया, उसने कहा ये काफी देर से यहाँ पे खड़ी हुई, इसको निकालो। फिर उन्होंने मुझे निकाला, लेकिन मतलब उनका तो उनके तो रोज की बात है, वो कोई कि जो धक्का दे दे के निकालो। लेकिन मेरी जिंदगी, मैंने कहा बस अल्लाह मियां अब आप मेरी जान भी जो आप निकाले ना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। तो बड़ी बात है। से आप इतनी खूबसूरत बातें कर रही थी, सादिया साहिबा ने भी इतनी खूबसूरत अपने एक्सपीरियंस का इज़हार किया। देखिए उधर से कोई खाली हाथ नहीं आता, मांगने वाला दिल और मांगने वाली जुबान होनी चाहिए। एक तो मैंने बेटी की दुआ मांगी थी, अभी मैं यही बता रही थी, मैंने मुल्तजिम पर, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर परेशान होते थे तो मुल्तजिम से लिपट कर रो कर दुआ करते थे। तो मैंने रो कर दुआ की तो अल्लाह ने मुझे रहमत अता की। और जब मैं मदीने गई तो मेरी वो बेटी खो गई। मुझे मतलब बड़ी थी, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, तकरीबन 3 घंटे बाद वो मुझे मिली, रश में खो गई वो, बस बहुत रश था। तो यकीन करने में वहाँ बैठ गई। मैंने कहा था मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, खाली हाथ नहीं जाऊंगी, अल्लाह तूने मुझे अता की है तो सबब पैदा कर मेरे लिए। तो पता चला लोग ऐलान हो रहा कि कोई बच्ची रो रही, उसको सही से अपनी माँ का नाम भी रो रही है, अम्मी अम्मी करके। फिर मैं और मेरे शौहर गए तो मुझे मतलब मेरी बेटी मिली। और जब भी मुझे अल्लाह कोई नेमत अता करता है, अल्लाह ने मुझे बहुत नेमतों से नवाजा, तो मैं शुक्र अदा करने वहाँ पर जाती हूँ। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, अगर हम मोहब्बत का, अगर हम रसूल की सीरत देखें तो हम सीरत में क्या कुछ ऐसा पाते हैं? क्योंकि देखिए हम अपने नबी को देखते हैं, वो रहमतुल आलमीन। हमारा ये होता है कि हम अपनी बिरादरी पे अगर मेहरबान होना है तो उन पे होना है, अपने मुस्लिम बहन भाइयों पे ही मेहरबान होना है। हम बाकी लोगों को इसमें कंसीडर नहीं करते, जबकि जो हमारे रसूल खुदा हमें दर्स दे रहे हैं, वो जो शफकत का, वो जो रहमत का दे रहे हैं, वो तमाम आलमीन के लिए है। जिन परिंद चरिंद सब, काफिर सब पे। जो बुरों का भी भला करे वो रसूल मेरा रसूल है, कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे नबी का उसूल है। वो जहाँ जहाँ से गुजर गए वहाँ रहमतें बरसती हैं, और वो जहाँ गए वो जहाँ रुके वहाँ रहमतों का नुज़ूल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब, हमने तुम्हें किसी कौम या जमात के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। देखिए रहमतुल लिल आलमीन की रहमत मुस्लिम, मुशरिक, काफिर या गरीब, यतीम, अमीर सब पर यकसां बरस रही है, और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उनकी रहमत से मुस्तफ़ीद हो रहा है। वक्त कम है, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक गाँव में तशरीफ़ ले गए। लोग जौक दर जौक जमा हो गए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। एक सहाबी थे, उनका रंग बहुत सेहा था और उनके जिस्म से इतनी बदबू आती थी कि उनसे कोई बात नहीं करता था। वो सहाबी बकरियां चरा रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, बकरियां छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर देखने चले गए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा हो गए, तो दूर से खड़े होकर पूछ रहे हैं कि आप भी अल्लाह के रसूल हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं ही अल्लाह। आप ही दीन हक़ की तालीम देते हैं? तो कहते जी मैं ही दीन हक़ की तालीम देता हूँ। आप ही लोगों को तालीम देते हैं कि उन बुतों की परस्त छोड़ो जो तुमने खुद तराशे हैं, उस अल्लाह को सजदा करो जो वाहिदुल ला शरीक है। कि ना मैं ही दीन हक़ की तबलीग देता हूँ। तो कहते आओ ना, तुम मेरे पास आते क्यों नहीं, इतनी दूर से सवाल क्यों कर रहे हो? तो सहाबी ज़ारो कतार होने लगे, कहने कि या रसूलल्लाह मेरे जिस्म से तो इतनी बदबू आती है कि मेरी तो औलाद ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे तो बीवी रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन थे,
बैठे थे खड़े हो गए, उनके पीछे जाने लगे तो भागने लगे, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज चले और उनको पकड़ लिया जाकर, उनको सीने से लगाया, उनका माथा साफ किया और उनके माथे का बोसा दिया। वो सहाबी झुके तो झुकते ही चले गए और इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे तो माज़ बिन जबल भी तशरीफ़ फरमा थे। एक बच्चा आया, कहने का अल्लाह के रसूल मैं यतीम हूँ, मेरी एक माँ है, एक बहन है, 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ मेरे घर जाओ, कुछ भी खाने के लिए ले आओ। जो रहमतुल लिल आलमीन है, कायनात की सारी कुंजियाँ उनके ज़ीरे नगी हैं। देखा तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था, सिर्फ 21 खजूरें थी, लेकर आ गया। कहने बेटा 7 खजूरें तेरे लिए, 7 तेरी माँ के लिए और 7 तेरी बहन के लिए, रहमत और बरकत की दुआ की। जब वो बच्चा जाने लगा तो हज़रत माज़ बिन जबल चुपके से उठे, उस बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि माज़ क्यों उठ कर गए थे? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मोहब्बत की नीयत से, शफ़क़त की नीयत से उस बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। ये सुनना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और फरमाया कि जो शख्स किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखता है, अल्लाह ताला यतीम के हर बाल के बदले उसके नामा अमाल में 1000 नेकियां लिख देता है, 1000 दर्जात बुलंद कर देता है, 1000 गुनाह मिटा देता है। तो आज हम किसका जश्न मना रहे हैं? किसकी विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं? जिसने गरीबों के को की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, कि कैसे हुकूक व लिबास की अदायगी बताई, बड़ों का अदब करना सिखाया, छोटों से शफ़क़त से पेश करना सिखाया। और अपने के वाले से मज़ीद बात करेंगे, मुझे लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। कतरा मांगे कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे जो कोई। सुभान अल्लाह जी। मैं इसे एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जिए। मैं इसे एज़ाज़ के
पुत्र मांगे जो कोई। अरे सलामत रहे, सलामत रहे, जीती रहिए। बनो समा की आवाज़ रमज़ान में हमारी विनर भी हैं कहकशा सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही प्यारी नात ख्वान बच्ची हैं, अल्लाह पाक इनके बहुत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इनके बहुत सारे, हम जो भी यहाँ पे मौजूद हैं सबके, हम बेटियों के नसीब के वाले से ज़रा बात करते हैं, बेटों के नसीब के वाले से ये बात होनी चाहिए। तमाम तो लोगों के नसीब अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके में बेहतरीन कर दे, मुकद्दर संवार दे। अच्छा, मैं हम जैसे कि आप बात कर रही थी कि किस तरीके से जो रसूल के जो शफ़क़त का जो समुंदर है वो कैसे ठाठे मारता था। वो रहमतुल आलमीन, वो तो मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मुसलमान है, अल्लाह पाक भी तो ऐसे नहीं, तो अल्लाह की सिफ़ात में से एक है, तो अल्लाह कहता है जो मुझे नहीं मानता मैं तो उसको भी खिलाता हूँ। तो रसूल का भी यही है कि जो नहीं मानता, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिनुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत थे। तो मैं एक दुरूद के हवाले से एक वाक़या पहले आपकी समातों की नज़र करूँ, उसके बाद फिर मोहब्बत और शफ़क़त के हवाले से बात करूँगी। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को एक मरतबा परवरदिगार आलम की जानिब से वही आई कि ए मूसा फ़लाँ इलाक़े का फ़लाँ मोहल्ला है, फ़लाँ जगह पर एक शख्स का इंतकाल हो गया है, तुम जाकर उसकी तजीज़ व तकफ़ीन करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पर पहुँचे हैं और वहाँ पे रहने वाले लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ तो किसी का इंतकाल नहीं हुआ। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा परवरदिगार आलम से मुनाजात फरमाई और कहा कि रब्बुल आलमीन तुम मुझे सही बता दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुजूर नबी करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम की जानिब से मुनाजात के वही की गई कि नहीं मूसा फ़लाँ इलाक़ा फ़लाँ मोहल्ला फ़लाँ इलाक़े में फ़लाँ शख्स का इंतकाल हो गया है। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस जगह पर पहुँचे और जब किसी से मालूम किया तो लोगों ने कहा कि हाँ वो शख्स बड़ा फासिक व फाजिर था और वो बहुत ज़्यादा गुनाहगार था और हमने उसकी लाश को कुचरा कंडी पर फेंक दिया। तो हुजूर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी लाश को उठाया और तजज़ीज़ तकफ़ीन की और एक मरतबा परवरदिगार आलम से जब तजज़ीज़ तकफ़ीन से फारिग हो गए तो उसके बाद वही की मुनाजात की, कहा कि परवरदिगार आलम अहले मोहल्ला कह रहे थे कि वो शख्स बड़ा फासिक व फाजिर था मगर उसके बावजूद तेरा इतना फजलो करम। तो एक मरतबा परवरदिगार आलम की जानिब से वही आई कि ए मूसा वो शख्स नहायत गुनाहगार था, नहायत फासिक व फाजिर था, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करता था। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा करता था। तो परवरदिगार आलम ने उसको इतना, ये उसकी मार्फत का लेवल था कि वो उस टाइम पे उसमें ये मार्फत थी कि अभी आए नहीं रसूल इस दुनिया में, मगर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा करता था। तो परवरदिगार आलम ने उसको इतना अजर सवाब अता फरमाया कि अल्लाह के नबी ने उसको उसकी तजज़ीज़ व तकफ़ीन की। और मोहब्बत और शफ़क़त की जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का क्यों ना तज़किरा करूँ, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किस कदर आया थी। और मैं कहती हूँ कि ये जो आज भी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है कि हम अपने नवासों को प्यार किया करते हैं। मेरे ख्याल में ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सुन्नत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम हसन और इमाम हुसैन ने फरमाया कि नाना जान, मदीने के तमाम ईद का दिन है और मदीने के तमाम बच्चों के पास सवारियाँ मौजूद हैं और हमारे पास कोई सवारी नहीं थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाका बन गए और कहा कि मेरे ऊपर सवार हो जाओ। तो सहाबाए कराम में से किसी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी खूबसूरत सवारी है। तो एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार कितने अच्छे हैं। तो ये मोहब्बत और शफ़क़त की आला तरीन मिसाल है। बिल्कुल, और ना सिर्फ ये बल्कि बेटियों की ताज़ीम ज़माना जहालत में जहाँ पर बेटी पैदा होते ही दफना दी जाती थी, वहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला निजात, शाफ़ाए महशर, साक़ी कौसर
जिस तरीके से अल्लाह पाक ने भी उनको कहा कि इन्ना अतीना कल कौसर वही नाज़िल हुई ना, और फिर अल्लाह पाक ने उनको फिर कौसर अता की, वो अपनी उस बेटी की ताज़ीम में, और यकीनन हमारी क्या औकात, वो बेटी भी और ही थी, वो बेटी भी और थी कि जिनको इजाज़त है। दुनिया जहान में ज़माने में देखा जाता है कि जो औलाद होती है वो बाप से चलती है, लेकिन ये जो सादात नस्ल है, ये जनाब फातिमा तो ज़हरा का एजाज़ है, एजाज़ जनाब फातिमा तो ज़हरा है कि जो सादात की नस्ल है वो जनाब फातिमा तो ज़हरा से चली है, तो यकीनन ये बेटी भी और है। लेकिन उम्मे अबिया इनको कहा गया, जब बेटी आती थी तो मिंबर से उठ के अपनी अबा मिंबर पे बिठाते थे बेटी की ताज़ीम में, लोगों के सामने। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी रसूल पाक ने इसलिए भी करके बताई ताकि लोगों याद रखना, बिल्कुल ये मेरी बेटी की ताज़ीम है, ये मेरी फातिमा की ताज़ीम, और अपनी बेटियों को कैसे परवान चढ़ाना है। तो आप सोचें आज के भी इस दौर में हम लोगों को जेंडर इक्वालिटी के हवाले से बात कर रहे हैं कि अपने बेटों को अगर अच्छी तालीम दिलाते हैं, अपनी बेटियों को भी अच्छी तालीम दें। वहाँ कब से नबी पाक ने हमें बताया कि बेटी की कदर मंजिलत क्या है, उसकी ताज़ीम क्या है। अच्छा, इससे पहले क्योंकि हमारी महफिल इतनी खूबसूरत आज की, क्योंकि मिलाद में ही हम चले गए, तो मैं चाहती हूँ कि एक खूबसूरत नाच जिसमें मैं चाहती हूँ सलमान आप भी शुरू करेंगे। और कल का हमारे जनाब याद रखिए कल 12 रबीउल अव्वल का दिन और कल 6 सितंबर भी है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो पूरी कायनात बनी है, तो अल्लाह पाक ने उन्हीं के सदक़े में 27 रमज़ान को हमें भी एक तोहफ़ा दिया था हमारे बुज़ुर्गों को पाकिस्तान की सूरत में, और कल उस पाकिस्तान के यौम दिफ़ा भी है। तो हम इंशाअल्लाह अपने शहीदों को, अपने बहादुर सपूतों को जो इस वक्त हमारे इस पाक वतन की सरज़मीन की हिफाजत करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश भी करेंगे। तो स्पेशल उस दिन का दिन भी हम सेलिब्रेट करेंगे 12 रबीउल अव्वल को। तो अब जाने से पहले सब इसमें हिस्सा डालेंगे। खूबसूरत नाच जो दिल के बड़े करीब है, प्लीज। हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मोहल्ला, हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मोहल्ला, हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा सिदरा, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन यूं बोले, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। जिड़ीस तू अगे जुआनी उस जोदी तू यूसु जाने, इते आगे मेरी हद मुक गई, अगे तू जाने या रब जाने, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन
शफाअत दे